Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube channel. Today we discuss our chapter number 37. Let's make world smaller. Let's make words smaller. Nationally or internationally many organizations work. Students अब जानते हैं कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे वर्क करते हैं. These names are समटाइम्स वेरी लॉन्ग. जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बने हुए हैं इनके नाम कई बार काफ़ी लंबे सुनाई देते हैं, कई बार काफ़ी लंबे होते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ दीज नेम्स मीनिंग एज दे कैन नॉट बी यूज्ड एवरी टाइम इन स्पीकिंग एंड राइटिंग. स्टूडेंट्स, जब हम ये लॉन्ग नेम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी सारी कई बार परेशानी उठानी पड़ती है इनको बोलने में और इनको लिखने में. सो वी यूज़ देयर शॉर्ट फॉर्म्स, इसलिए हम उनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना देते हैं. फॉर दिस लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम. जो हम ऑर्गेनाइजेशन है हमारे वर्क करते हैं उनकी जो शॉर्ट टर्म हम बनाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. राइट फुल फॉर्म ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस नेम. फॉर हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, उनको हमें लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है उनकी. लेट्स सी. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WORLD वर्ल्ड. HEALTH हेल्थ. ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WORLD वर्ल्ड. HEALTH हेल्थ. ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज CRY चाइल्ड रिलीफ एंड यू. CHILD चाइल्ड. RELIEF रिलीफ. AND एंड YOU यू. चाइल्ड रिलीफ यू एंड यू. CHILD चाइल्ड. RELIEF relief. AND and YOU you. Third one is IGNOU IGNOU. Indira Gandhi National Open University. INDIRA Indira. GANDHI Gandhi. NATION National. OPEN Open. UNIVERSITY University. Indira INDIRA Indira. GANDHI Gandhi. NATIONAL National. OPEN Open. UNIVERSITY University. एड्स. फोर्थ वन है एड्स. एड्स की फुल फॉर्म क्या है? ACQUIRED acquired. Immune. AMMUNE immune. Deficiency. DEFICIENCY deficiency. Syndrome. SYNDROME syndrome. Acquired immune deficiency syndrome. ACQUIRED acquired. EMMUNE immune. DEFICIENCY deficiency syndrome. SYNDROME syndrome. BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड. BHARAT भारत. SANCHAR संचार. NIGAM निगम LTD लिमिटेड. भारत संचार निगम लिमिटेड. BHARAT भारत. SANCHAR संचार. NIGAM निगम LTD लिमिटेड. यूनिसेफ. UNICEF यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड इमरजेंसी फंड. UNITED यूनाइटेड. NATIONS नेशंस. UNSTITUTE इंस्टीट्यूट. OF CHILD चाइल्ड. EMERGENCY इमरजेंसी. FUNDY फंड. यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड इमरजेंसी
fund. Seventh is UNDP, United Nations Development Program. UNITED, United. NATIONS, Nations. DEVELOPMENT, Development. PROGRAMAMME, Program. United Nations Development Program. WWF, World Wildlife Fund. WORLD, World. WILDLIFE, Wildlife FUND Fund. ISRO, International Satellite Research Organization. INTERNATION, International Satellite. SATELLITE, Satellite. RESEARCH, Research. ORGANIZATION, Organization. International Satellite Research Organization. IPCC, International Panel on Climate Change. INTERNATIONAL, International. PANEL, Panel. CLIMATE, Climate. CHANGE, Change, International Panel on Climate Change. NCERT, National Council of Education and Research Training. National Council on Education and Research Training. NATION, National. COUNCIL, Council on Education. ADUCATION, Education. and RESEARCH, Research Training. TRAINING, Training. National Council on Education and Research Training. Last one is NTC, National Textile Corporation. NATION, National. TEXTILE, Textiles. CORPORATION, Corporation. I hope you understand all the full forms of short terms. आपको ये short term की सारी full forms समझ में आ गई है. Write them in your book in neat and clean handwriting, and also write in your fair notebook and learn them. Thank you. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 9. Dear students, in our previous video we complete our chapter number 9 reading. Today we will do this chapter difficult words and warnings. So let's start. First of all, heading डालेंगे chapter number 9 difficult words. DIFFICULT, difficult. WORDS, words. फर्स्ट हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड है एनवायरमेंट. ENVIRONMENT, एनवायरमेंट. ENVIRONMENT, एनवायरमेंट. सेकेंड इज पोल्यूशन. POLLUTION, पोल्यूशन. थर्ड इज ऑर्गेनिज्म. ORGANISM, ऑर्गेनिज्म. फोर्थ है फिनोमिना. PHENOMENA, फिनोमिना. फिफ्थ है इरप्शन. ERUPTION, इरप्शन. सिक्स्थ है अक्यूमुलेशन. ACCUMULATION, अक्यूमुलेशन. सेवन्थ है ऑटोमोबाइल्स. AUTOMOBILES, ऑटोमोबाइल्स. एट्थ है कंटेमिनेशन. CONTAMINATION, कंटेमिनेशन. नाइन्थ है इंटेंसिटी. INTENSITY, इंटेंसिटी. टेंथ है टेम्परेचर. TEMPERATURE, टेम्परेचर. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट हमारा डिफिकल्ट वर्ड है एनवायरनमेंट. सेकंड इज पोल्यूशन. थर्ड इज ऑर्गेनिज्म. फोर्थ है फिनोमिना. फिफ्थ है इरप्शन. सिक्स्थ अक्यूमुलेशन. सेवन्थ है ऑटोमोबाइल्स. एट्थ है कंटेमिनेशन. नाइन्थ है इंटेंसिटी और टेंथ है टेम्परेचर. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज में वर्ड मीनिंग. WORD, वर्ड. MEANING, मीनिंग. फर्स्ट इज पोल्यूटेंट. POLLUTANT, पोल्यूटेंट मीन्स होता है प्रदूषक. पोल्यूटेंट मीन्स क्या होता है? प्रदूषक.
सेकेंड इज ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। थर्ड है फैक्टर्स, FACTORS, फैक्टर्स मीन्स घटक। फोर्थ है वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। फिफ्थ है इंटेंसिटी, INTENSITY, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता। सिक्स्थ है स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस मीन्स तनाव। सेवन्थ है इरेप्शन, ERUPTION, इरेप्शन मीन्स विस्फोट। एट्थ है फिनोमिना, PHENOMENA, फिनोमिना मीन्स घटना। नाइन्थ है असेंशियल, ESSENTIAL, एसेंशियल मीन्स आवश्यक। टेंथ है डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर मीन्स आपदा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पोल्यूटेंट मीन्स प्रदूषक, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, फैक्टर्स मीन्स घटक, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, स्ट्रेस मीन्स तनाव, इरेप्शन मीन्स विस्फोट, फिनोमिना मीन्स घटना, असेंशियल मीन्स आवश्यक, डिजास्टर मीन्स आपदा। So dear students, I hope you understand and learn and write this difficult word and word meaning in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 5th English Reader chapter number 14. In our last video we have completed our book exercise and short question answer. Now we will start our part F. Answer the following questions in one sentence. Question number first. Why was Riya upset? Riya upset क्यों थी? Answer. Riya was upset because Tarun made fun of Riya's brain. He says that you don't have a brain. क्योंकि जो तरुण था उसने रिया के किसका ब्रेन का मजाक उड़ाया था और कहा था कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2. If you feel thirsty, how would your brain help you to get this information? अगर आपको प्यास लग रही है, आप महसूस कर रहे हो, तो आपका जो ब्रेन है वो किस प्रकार से इस सूचना को पहुंचाएगा आप तक, ब्रेन तक जो है ये सूचना कैसे पहुंचेगी, किस प्रकार हेल्प होगी आपकी? आंसर. When we feel thirsty, our brain will give information to our hands and then will quench our thirst by taking water from our hands. क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो हमारे माइंड को पता चल जाता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे हैंड तक जाती है और इस प्रकार से हम हाथों से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Why the स्टीगोसोर्स वॉज कंसिडर ब्रेनलेस? जो स्टीगोसोर्स था उसे किस प्रकार से मस्तिष्कहीन क्यों माना जाता था? बिकॉज इट्स वेट वॉज 1.5 टन yet its brain was the size of a walnut. क्योंकि जो इसका अपना वजन था वो कितना था? 1.5 टन का, और इसका जो मस्तिष्क था उसका जो वजन, जो साइज था वो एक अखरोट की तरह था। At one point, scientists theorized that it had an auxiliary brain, not an actual brain. और एक बार जो एक पॉइंट पर साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया था कि इनके पास क्या है, एक सहायक ब्रेन है, ना कि एक वास्तविक ब्रेन। पार्ट जी. क्वेश्चन नंबर 1. In what way is the human brain different from the brain of cockroach and flies? किस प्रकार से जो हमारा मानव का मस्तिष्क है वो कॉकरोच और जो मक्खी होती है उसके ब्रेन से डिफरेंट है, अलग है। आंसर. द ह्यूमन ब्रेन इज बिग एंड क्लेवर देन कॉकरोच एंड फ्लाइज. क्योंकि जो मानव मस्तिष्क है वो बड़ा है और कैसा है, चतुर है। किसके? कॉकरोच और मक्खी के ब्रेन के। योर ब्रेन हेल्प यू लर्न थिंग्स एंड रिमेम्बर देम. और जो आपका ब्रेन है वो आपकी हेल्प करता है किसमें? चीज़ों को सीखने में, याद रखने में उनको। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, सूचना एकत्रित करता है। इट ऑल्सो गेट्स मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू एंड अराउंड यू. और जो हमारे विभिन्न भाग हैं हमारे शरीर के, उनमें
हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमारे आसपास क्या चल रहा है, ये सभी सूचनाएं हमारा कौन देता है, कौन भेजता है ये संदेश, हमारा ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फंक्शन डू नाउ सेल्स परफॉर्म इन आवर बॉडी। जो हमारी तंत्रिका है, कोशिकाएं हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं हमारे बॉडी में, शरीर में। आंसर, नर्व्स आर स्पेशल सेल्स दैट आर क्वाइट लॉन्ग। जो कि स्पेशल कोशिकाएं होती है, काफी लंबी। दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू द ब्रेन। वे हमारे विभिन्न भागों से जुड़ी हुई है शरीर के, इसे ब्रेन तक। दे लेट द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेज और इंफॉर्मेशन। वो हमारे ब्रेन को क्या करती है, विभिन्न प्रकार के मैसेज प्राप्त भी करती है ब्रेन, और भेजता भी है पार्ट्स को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और विभिन्न भागों को वो संदेश भेजता भी है और उनसे क्या करता है, प्राप्त भी करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे इज आवर ब्रेन बेटर देन अ कंप्यूटर। किस प्रकार से जो हमारा ब्रेन है वो कंप्यूटर से बेटर है। आंसर, बिकॉज द ह्यूमन ब्रेन कैन थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। जो हमारा मानव मस्तिष्क है वो क्या कर सकता है, थिंक कर सकता है, स्वप्न ले सकता है, ड्रीम और कल्पना कर सकता है, और एक कंप्यूटर ये चीजें नहीं कर सकता। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में हम कर रहे थे पाठ 12 मुहावरे। हम उसी पाठ को अब आगे बढ़ाएंगे। तो हम आ गए थे मुहावरे नंबर 13 पर, ईद का चांद होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिनाई से दिखाई देना। जब से नौकरी लगी है तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ये वाक्य बनेगा। अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र, और वाक्य बनेगा राज जैसे आस्तीन के सांप से तो दूर रहना अच्छा है। अगला मुहावरा है मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हार जाना, और वाक्य बनेगा जब जब दुश्मन ने हमारे देश पर हमला किया है उसे मुंह की खानी पड़ी है। अगला मुहावरा है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है खुशियां मनाना, और वाक्य बनेगा श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे। पापड़ बेलना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत मेहनत करना। वाक्य बनेगा आजकल तो नौकरी ढूंढने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुहावरा है भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ होगा डर जाना, और वाक्य बनेगा अपने पिताजी को देखते ही मनु भीगी बिल्ली बन जाता है। अगला मुहावरा है छक्के छुड़ाना। इसका अर्थ होगा बुरी तरह हराना। वाक्य बनेगा हमारी टीम ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। हमारा मुहावरा है उल्लू बनाना, और इस मुहावरे का अर्थ होगा मूर्ख बनाना। वाक्य बनेगा मधुर अपने सीधे माता पिता को उल्लू बनाता रहता है। दिल दुखाना, मुहावरे का अर्थ होगा मन को कष्ट देना। कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये वाक्य बनेगा। अगला मुहावरा है हमारे पास दांतों तले अंगुली दबाना। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्य करना। क्या अर्थ होगा इसका, आश्चर्य करना, और वाक्य बनेगा सर्कस में कलाकारों के करतब देखकर दर्शकों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। अगला मुहावरा है पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत भूख लगना। खाने की खुशबू से ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। आगे है लोहा लेना, और लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होगा मुकाबला करना। वाक्य बनेगा वीर शत्रु से लोहा लेने को सदा तैयार रहते हैं। और हमारा अंतिम मुहावरा है हाथ साफ करना।
इसका अर्थ होगा वस्तु चुरा लेना। वाक्य बनेगा आज तो जेब कतरे ने नज़र बचते ही मेरी जेब पर हाथ साफ कर दिया। तो बच्चों ये मुहावरा नंबर 13 से 25 तक आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we read chapter 5. Today we will read remaining chapter of chapter 5. So let's start. अब है प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर इज़ अ सेइंग प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये हम कहते हैं जो प्रिवेंशन है वो बेटर देन क्योर है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। देयर आर मैनी वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। हमारे पास बहुत ज़्यादा मैनी वेज है प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट इज़ देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन इन द हाउस सो दैट द हाउस गेट सैनिटाइज विद द सनलाइट। हमारे घरों में क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे जो सनलाइट है वो घर में एंटर करे, जिससे हाउस क्या हो जाए, पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाए। Purified water should be used for drinking. It can also be boiled and chlorinated. हमें कैसा पानी यूज़ करना चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, प्योरीफाइड वाटर। Hands should be washed frequently with soap and water and especially after passing stools. हमें अपने हाथों को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए साबुन से और पानी से, स्पेशली आफ्टर पासिंग, जब हम कोई भी स्टूल पास करते। Fruits and vegetables should be washed properly before consuming. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें वाश करके ही यूज़ करना चाहिए, खाना चाहिए। कुक्ड फूड मस्ट बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट सिट ऑन दैम। पका हुआ भोजन ढक कर रखना चाहिए ताकि उनके ऊपर क्या नहीं बैठ पाए, फ्लाइज, मक्खी। वाटर शुड नॉट बी स्टेगनेंट एनीवेयर। पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दें अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ, एज इट कैन लीड टू ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। अगर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, मॉस्किटो ज़्यादा हो जाएंगे, उससे बीमारी होगी। ड्रेन मस्ट बी केप्ट कवर्ड। जो हमारी ड्रेन्स है, नाली वगैरह, वो हमें ढक कर रखनी चाहिए। अब है वैक्सीनेशन। द बॉडी बिल्ड्स अप इट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज व्हेन वी गेट वैक्सीनेटेड। हमें क्या करनी चाहिए, कोई भी जब हमारी डिजीज़ हो जाए तो उसको क्या करनी चाहिए, वैक्सीनेशन। देयर आर वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर डिजीज लाइक डिप्थेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, मीजल्स, मम्स एट्सेट्रा। हमारे यहाँ क्या अवेलेबल है, वैक्सीन्स अवेलेबल है। कौन कौन सी डिजीज़ की, डिप्थेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, मीजल्स, मम्स। अगर ये कोई डिजीज़ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीन्स लेनी चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से है, तो इसमें आएगा प्रोटीन्स, PROTEINS, प्रोटीन्स। बी, डैश फाइट विद डिजीज। डिजीज से कौन फाइट करता है, तो क्या आएगा, विटामिन्स, VITAMINS, विटामिन्स। डैश एंड डैश आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, CARBOHYDRATES, कार्बोहाइड्रेट्स, और फैट्स, FATS, फैट्स। ये क्या है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। बिसाइड्स ईटिंग ए बैलेंस डाइट, वी मस्ट, बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ हमें क्या रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्लीनलीनेस, CLEANLINESS, क्लीनलीनेस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कीप्स अस डैश एंड डैश। फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें क्या रखते हैं, फिट, FIT, फिट, एंड हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। डैश हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। कौन हेल्प करता है किसके रिमूवल में, अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल में, तो आएगा रफेज, ROUCHAGE, रफेज। डैश रिपेयर्स आवर बॉडी सेल। हमारी बॉडी सेल को कौन रिपेयर करता है, प्रोटीन, PROTEINS, प्रोटीन्स। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड. Do you also learn and write these question in your fair notebook? Thanks. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class, our exercise 14.1 is complete. Today we will start our exercise 14.2. Now question number first, express is of the following as a percentage of 1 rupees. Student, question number first में हमें इस पार्ट्स में पैसे गिवन है, इनको 1 रुपीज़ में बताना होगा कि ये 1 रुपीज़ के कितने परसेंट होंगे. So let's start.
₹1 इक्वल होता है स्टूडेंट्स 100 पैसे के। नाउ 1 पैसा इक्वल होगा 1/100 के। सेम एज 6 पैसा इक्वल होगा 6/100 के। नाउ स्टूडेंट इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया है 100% से। नाउ 100 से 100 कैंसिल, क्या आंसर आया स्टूडेंट 6%। मीन 6 पैसे इक्वल है 6% के। नाउ पार्ट ए 95 पैसे। 1 पैसा इक्वल होगा 1/100 के। 95 पैसे इक्वल होंगे 95/100 के। नाउ इसको परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से 100 कैंसिल, क्या लेफ्ट रहता है 95%। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 402 पैसे। 1 पैसा इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/100 के। नाउ 402 पैसा इक्वल होगा 402 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 402 को 100 से डिवाइड कर देंगे। नाउ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से 100 कट हो जाएगा, क्या लेफ्ट रहता है 402%। I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number first. Do next question. Question number second. Express each of the following as a percentage of 1 kilogram. So हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के each पार्ट्स में गिवन यूनिट्स को मीन्स ग्राम को 1 किलोग्राम के परसेंटेज में बताना है, क्या होगा। 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। नाउ 1 ग्राम इक्वल होगा 1/1000 किलोग्राम के। स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें गिवन है 8 ग्राम। 8 ग्राम इक्वल होगा 8/1000 के किलोग्राम के। नाउ स्टूडेंट्स इस परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से 20 कैंसिल। नाउ स्टूडेंट लेफ्ट क्या रहता है 8/10। 8 को 10 से डिवाइड करके यहाँ राइट करेंगे 0.8%। पार्ट ई 34 ग्राम। 1 ग्राम इक्वल होता है 1/1000 किलोग्राम के। 34 ग्राम इक्वल होगा 34/1000 किलोग्राम। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से 20 कैंसिल। नाउ स्टूडेंट्स ऊपर क्या लेफ्ट रहता है 34 एंड 1। 34 को 1 से मल्टीप्लाई किया 34 1 जा 34। नीचे 10%। नाउ स्टूडेंट 34 को 10 से डिवाइड करेंगे 3.4%। नाउ पार्ट जी 723 ग्राम। 1 ग्राम इक्वल होता है 1/1000 किलोग्राम के। 723 ग्राम इक्वल होगा 723 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। नाउ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से 20 कैंसिल। ऊपर लेफ्ट रहता है 723 और नीचे लेफ्ट रहता है 10। नाउ 723 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 72.3%। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज ऑफ 1 मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड के ईच पार्ट्स में सेंटीमीटर के यूनिट्स गिवन है, हमें फाइंड करना है ये 1 मीटर की कितना परसेंटेज होगी। नाउ 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1/100 मीटर के। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इक्वल होगा 4/100 मीटर के। नाउ स्टूडेंट परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, क्या लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 4%। नाउ पार्ट सी 17 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर के। नाउ 17 सेंटीमीटर इक्वल होगा 17/100। नाउ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, क्या बचता है स्टूडेंट 17। इसके साथ राइट करेंगे परसेंटेज। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड के ईच पार्ट्स में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज ऑफ 1 लीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के ईच पार्ट्स में गिवन यूनिट्स मिलीलीटर को 1 लीटर के परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। मीन्स ये फाइंड करना है वो 1 लीटर की कितना परसेंटेज होगी। नाउ स्टूडेंट्स 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। 1 मिलीलीटर इक्वल होगा 1/1000 लीटर के। नाउ
क्वेश्चन में गिवन है 9 मिलीलीटर। 9 मिलीलीटर इक्वल होगा 9/1000 लीटर। नाउ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, लेफ्ट रहता है 9/10। परसेंटेज 9 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.9 परसेंटेज। नेक्स्ट पार्ट बी 18 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1/1000 लीटर के। नाउ 18 मिलीलीटर इक्वल होगा 18 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। नाउ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से 20 कैंसिल। नाउ 18/10 परसेंटेज। 18 को 10 से डिवाइड करेंगे 18 परसेंटेज। नाउ पार्ट एफ 339 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1/1000 लीटर के। 339 मिलीलीटर इक्वल होगा 339 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। नाउ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, लेफ्ट रहता है 339 डिवाइडेड बाय 10 परसेंटेज। नाउ 339 को 10 से डिवाइड करेंगे 33.9 परसेंटेज। नाउ पार्ट एच 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर इक्वल है 1/1000 लीटर के। 1000 मिलीलीटर इक्वल होगा 1000/1000। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से 1000 कैंसिल, नाउ लेफ्ट रहता है 100%। स्टूडेंट्स 1000 मिलीलीटर 1 लीटर का 100% है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के ईच पार्ट में मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और उसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स यू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 14.2। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false. Now we start true false. First है CPU stand for control processing unit. CPU stand for control processing unit. क्या होगा ये? false. This one is the false क्योंकि यहाँ पे central की जगह क्या है? control. नेक्स्ट इज कीबोर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग। कीबोर्ड का यूज़ किस लिए होता है? टाइपिंग के लिए। दिस वन इज़ द ट्रू। नेक्स्ट है मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है? इनपुट डिवाइस। रॉन्ग। क्या होगा ये? फॉल्स क्योंकि मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट 4 है माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है हमारा? पॉइंटिंग डिवाइस। दिस वन इज़ द ट्रू। नेक्स्ट 5th है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या होता है हमारा? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दिस वन इज़ द ट्रू। नेक्स्ट है 6th प्रिंटर गिव अस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। प्रिंटर क्या देता है हमें? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्या होगा ये? फॉल्स क्योंकि जो प्रिंटर वो जो होता है वो क्या देता है हमें? हार्ड कॉपी आउटपुट। नेक्स्ट 7 है मॉनिटर गिव अस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है वो क्या होता है हमारा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और प्रिंटर जो देता है वो क्या होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। तो क्या होगा ये? ट्रू। नेक्स्ट है देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 26 अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक कौन सी होती है की? A to Z। तो 26 अल्फ़ाबेटिक की होती है तो क्या होगा ये? ट्रू। नेक्स्ट है देयर आर 5 टाइप ऑफ एरो की। एरो की कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5। तो क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। कौन सी होती है एरो की? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। नेक्स्ट है स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड। स्पेस बार जो की होती है वो कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी की होती है। क्या होगा ये? ट्रू। नेक्स्ट है देयर आर 12 फंक्शन की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 12 फंक्शन की होती है। फंक्शन की कौन सी होती है? F1 से F12। तो क्या होगा ये? ट्रू। नेक्स्ट है कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है? नहीं। तो क्या होगा ये? फॉल्स। नेक्स्ट है प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है हमारा? आउटपुट डिवाइस। So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.